So we have to move on our sixth chapter. Again, the sixth chapter belongs to your history part. The name of your chapter where we ended the last chapter, how the Britishers came in our India and how they overruled in our India. So after that, what happened during that time? Today's video we will discuss about that, because this chapter belongs to the same where we ended the last video. Means when people fight against colonialism, जब लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या करा, आवाज उठाई. So that the video is related to that one. Okay, so on today's note we had covered the sixth chapter, and as a topic we had covered these four topics. What are they? Colonialism and the private society, where we know about the hunters gatherers and the zoo cultivators. After that, the herders of animals and the settled cultivators, right? So let's begin our new chapter. For that you need your book. Please student, take out your book and open page number 86. On page number 86 we will start a new chapter. For that you need your pen or pencil. Just take out that and just point out where I am just reading. So here the first paragraph related to that chapter. Colonialism and the tribal society. What are they? Tribals or Adivasi are the groups of people bound together by the similar language, cultures and customs. Tribes have always existed in the Indian subcontinent, and their existence can be traced to ancient Indian cultivators. Reference of the tribes are available in even the Mahabharata and the Ashok pillars. Tribals were never really a part of the mainstream Indian life. They have always had a different socio-economic, political, religion structure, but continue to be an integral part of the traditional Indian social structure. Tribal communities form the subcontinental part of Indian population. Tribal culture is an inherent part of very diverse culture of our country. They have their unique way of living. Now, if we consider the tribals, who are the tribals? So, you know the word that in Hindi we can call it Adivasi, right? अब जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो those who lived in a forest, right, or in a vast forest, they all called Adivasi, where they are not connected to the normal peoples like we are, right? So they are just lived on a far by us, हमसे बहुत दूर पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो हम आदिवासी को देखेंगे कि ये सब कॉन्टिनेंट एरिया में रहते. सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हमसे इकोनॉमिक, जिस तरह से हम रहते हैं, हमें सारी सुख सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, फोन है हमारे पास में, है ना, खाने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं. तो ये क्या है, ये हम सोशल लोग हैं, हम लोग सोशल. लेकिन अगर हम आदिवासी की बात करते हैं तो ये समाज से अपने आप को किसी दूर दराज, जैसे कि जंगलों में अपने आप की इनकी खुद की कम्युनिटी होती है, ग्रुप की, ये लोग वहां रहते हैं, राइट. मूव ऑन. अब ये जो अलग अलग तरीके के ट्राइबल्स होते हैं उनके बारे में जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ हंटर्स एंड गैदर्स. हंटर्स मतलब शिकार करना, गैदर इकट्ठा करना, राइट. तो हु आर द हंटर्स एंड गैदर्स? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मैंस वर लिविंग एज अ हंटर्स गैदर्स, राइट. तो अब इसमें क्या है, लेट्स कंटिन्यू दैट टॉपिक. In several regions, tribals got their livelihood through hunting and gathering produce from the forest. They Hoons of Odisha belongs to this community. If we are talking about some community related to the tribal, those who are hunters and gatherers. So when we know about the Odisha, when we try to know about the Odisha, in Odisha there was a community. There is a community who belongs to the Hoon community. Hoon basically a kind of tribal group. है ना. तो लेट मी कन्वर्ट इट इन हिंदी. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बहुत से अलग अलग हिस्सों में हमें क्या मिलता है, ये ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलता है, मतलब आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर हम बात करें ये लोग कौन होते हैं, तो ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए, मीन्स टू सस्टेन देयर लाइफ दे हैव टू हंट एंड गैदर द थिंग, मीन्स शिकार करके या फिर जो फॉरेस्ट में उगा सकते हैं उसके द्वारा उन उगाई हुई वस्तुओं को ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके उसी से अपना जीवन यापन करते हैं. मतलब उनका नॉर्मल लाइफ होती है, जैसे हम लोगों को ट्रांसपोर्ट मिल रहा है ना, जाने के लिए गाड़ियाँ मिल रही हैं, ऐसा इनके साथ नहीं होता. तो ऐसे कौन से लोग हैं यहाँ पर
regular hunting, they used to cook their food with oil, with which they extracted from the seeds of trees and malva flower. Shrubs and herbs from the forest were used to medicinal purpose. Local weavers and the leather workers depended on the coons for the supply of kusum and the palas flowers for dyeing leather and clothes. अब as we already know, the coons belongs to the tribal community, those who live in उड़ीसा. सो ये लोग कैसे अपनी अभी हमने बोला कि ये लोग उस तरह के लोग होते हैं जो हंटर और गैदरिंग पे निर्भर करते हैं. तो ये लोग हर रोज शिकार पे जाते हैं और ये खाने के लिए जिस तेल का उपयोग करते हैं वो यहाँ पर क्या किया, दे यूज टू कुक देयर फूड विद ऑयल विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ ट्री. जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो फल लगते हैं, है ना, बीज, उन बीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब पीस करके जिस तरीके से भी उसका तेल निकालते हैं और उन्हीं से वो क्या करते हैं, वो अपने खाने का जो भी मटेरियल होता है वो बनाते हैं. राइट. दूसरे अगर देखा जाए तो मेडिसिनल वे पे अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से जो जंगलों में फूल पत्तियां, श्रब्स और हर्ब्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं. लेकिन इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ दीज local weavers and the leather workers depended on the coons, those who are the local people who lived nearby this tribal community. They have to collect the leather. Leather means raw material which is actually given by the coons people, right? So local weaver and leather workers depended on coon to supply एक तरह की डाई, जैसे आप देखते हैं ना हम सबके घर में होती है by which we color our white clothes, है ना, नील जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. तो ये जो नील होती है, दो तरह के पेड़ होते हैं जिनको बोलते हैं कुसुम एंड पलास. कुसुम और पलास ये डाई का नाम है जिससे हमें, मतलब ये फ्लावर का नाम है जिससे हमें डाई मिलती है. तो ये जो होता है ये कून्स जो कम्युनिटी है इसके द्वारा लोकल मटेरियल तक पहुंचता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस. पीपल ऑफ फॉरेस्ट got rice and grain in exchange for the valuable forest product. Some of them worked in fields, carried loads for did some the other odd jobs to earn their livelihood. अब इनमें से कुछ लोग जो है वो जो अपना ये कुसुम और पलाश जो इस तरह के जो पौधे होते हैं फ्लावर्स देते हैं डाई के लिए, इनके एक्सचेंज में ये दूसरे वेंडर से क्या लेते हैं, खाने की चीजें ले लेते हैं. सपोज उन्होंने अपना ये जो कुसुम और पलाश का वो रॉ मटेरियल ले दिया किसी वेंडर को, तो उनसे उन्होंने राइस ले लिया खाने के लिए या अदर वेल्यूएबल प्रोडक्ट विच इज दे नीडेड एट दैट टाइम, तो वो उसको ले लेते हैं. इसके साथ में कुछ ऐसे भी ट्राइबल होते हैं जो आसपास के गांव में क्या करते हैं, लोडी का काम करते हैं, जो मतलब कि खेतों में काम करते हैं या सामान ढोने का काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए. इट इज इफ द सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस shrank, tribal had to face a lot of difficulty. अगर सपोज मान लीजिए किसी साल ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई और जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनमें कभी उनके खाने पीने की कमी वाली जो कमी आ गई, मतलब वस्तुएं नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, तो इनके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है. That's why, however, beggars tribe of central India lives only to produce of the forest. They thought it as dignified to work as the laborers. So that's why इन्होंने जो ये दूसरा दे हैव अल्टरनेटिव सोर्स कि वो कार्ट लोडिंग और इस तरह का काम करे ताकि उनके जीवन यापन में कोई, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, किसी साल बहुत अच्छी बारिश हो जाती है और किसी साल नहीं होती, तो दैट्स व्हाई दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. ट्राइबल ग्रुप्स often got products which were not produced in their locality. For this they had to depend on the traders and the money lenders who gave them loans at high interest rates. This reduced tribals into a state or debt and poverty. Money lenders and pretenders were thus the cause of misery. Now, अब क्या था, ये बात कर रहे हैं हम तब की जब हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज लोग आ गए थे तब. तो यहाँ पर बोला कि जो ट्राइबल लोग थे, क्योंकि ये पूरी तरह से आश्रित थे किस पे, जंगलों पर, जंगलों में खेती करते थे या दूसरे कुसुम पलाश जैसे पेड़ ये लोग इकट्ठे करते थे, फिर उनको जो वेंडर्स होते थे उनको हैंड ओवर करते थे. कुछ ऐसे थे अपने जीवन यापन के लिए कार्ट लोड या गाड़ी घोड़ा इन सब लदाई का जो मतलब प्रोडक्ट होता था मटेरियल उसको लादने का काम करते थे. लेकिन बोला जाए कि क्योंकि ये पूरी तरह से सपोज अगर किसी साल खेती अच्छी नहीं हो पाई जो इनको रिक्वायर्ड होता था, पैसे के नीड्स पूरे नहीं हो पाए, तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, ये जो मनी लेंडर्स होते थे या जो दूसरे लोग होते थे उनसे क्या करते थे, हाई रेट पे लोन्स लेते थे. राइट. तो इससे क्या हुआ, इससे जब ये लोन्स
भरपाई नहीं कर पाते थे, तो इसके चलते जो मतलब इनके ऊपर क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता था और इसके कारण ये क्या होता था, इनसे ज़मीन जो इनकी ज़मीन होती थी वो भी छीन ली जाती थी और धीरे धीरे करके ये किस तरह मतलब होते हैं कि पूरा गरीबी की तरफ, पॉवर्टी की तरफ और डेप्थ की तरफ, मतलब एक तरह से बोल जाते हैं ना कंगाल हो गया इंसान, तो उस तरीके से ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। और ये जो पूरी जो इनकी सिचुएशन थी, द सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश व्हेन दे अराइव्ड इन इंडिया। ऑलराइट, सो सेकंड रिलेटेड टू दैट इज ज़ूम कल्टीवेटर्स। ये तो बात हो गई हंटर्स और गैदरर्स की, तो ज़ूम कल्टीवेटर्स कौन होते हैं? Some tribals practiced zoom cultivators, which was done on a small piece of land. They cut trees and burned vegetation so that they could use the land there. They spread the ash from the fire, which contained potash to make the soil fertile. Trees were cut with axe and the hoe to scratch the soil, make it fit for cultivation. Seeds were scattered on the field. Once harvesting of crops was done, farmers shifted to another field. The cultivator's field was left for some years so that it could be regain its fertility. This was called zoom or shifting cultivators and was practiced in a hilly and forest parts of the northern east and the central India, which people of this tribe remained confined to the forest only. Now, second point related to zoom cultivator. Let me convert in Hindi also. Zoom cultivator क्या होता है? Zoom cultivator का नाम आप लोगों ने बहुत, आज हमारी इंडिया में आज भी बहुत सारी जगह हिली एरियाज में खास करके, अगर हम नदर ईस्ट की बात करें या हम अगर अपने सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो आज भी हमारे इंडिया में ये कम्युनिटी है जिसको हम ज़ूम कल्टीवेटर या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये होता है बेटा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी पूरा जो एक ग्रुप होता है जहाँ ये रहते हैं, पहले क्या करते हैं, वहाँ पर ये जमीन जो होते हैं उसको एक्स के थ्रू खुदाई, जैसे हल तो इनके पास होता नहीं है, तो खेत की जो खुदाई करते हैं वो किसी धारदार एक्स या मतलब बनाते हैं, ये लकड़ी टाइप को, उसके थ्रू ये लोग अपना खेत तैयार करते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, उसके बाद उस फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, सीड्स जो होती है, उनको लगा देते हैं। जब ये सीड्स बड़ी हो जाती हैं, इनकी कटाई का टाइम आ जाता है, तो ये कटाई कर लेते हैं और जो बचा हुआ मटेरियल होता है, सपोज अगर बीट लगाई है तो ऊपर वाला पार्ट तो कट कर लेंगे, लेकिन जो नीचे की जड़ रह गई या उसका क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये उसको जला देते हैं, मतलब जो बचा हुआ बाद में वेस्ट मटेरियल होता है उस खेत में, उसको लाइन से जला देते हैं। और जलाने के साथ में जो, क्योंकि कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं ना, जो उसको कवर कर रहे हैं उस एरिया को, उसको भी विद द हेल्प ऑफ फायर और कुल्हाड़ी से उसको काट काट के उसको, जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, जो खेत में जो ऐश मतलब राख, जल की जो राख बचती है, उससे क्या होता है, पोटाश नामक क्या होता है, जो फर्टिलिटी, जो मतलब जो जमीन जो खराब हो गई होती है, एक बार क्या होता है फसल लगाने के बाद फिर उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है ना, तो उसको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो पोटाश जो होता है वो जब ये जला करके उसको छोड़ देते हैं तो उसमें वापस से फर्टिलिटी गेन कर लेता है। और क्योंकि वो एरिया अब जला दिया गया है और जलाने के बाद में उसको वेट करना पड़ता है कुछ महीनों के लिए, तो ये जो ट्राइबल ग्रुप होता है, जब एक खेती हो जाती है तो ये किसी दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो वाली जगह, पुरानी वाली जगह जो है वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा से गेन ना कर पाए। और इसीलिए इस तरीके की जो कल्टीवेशन प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन और या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। अब ये कौन से एरिया में मिलता है, तो ये इन इंडिया जो हिली रीजन है हमारे, जैसे हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला हिली रीजन और सेंट्रल पार्ट इंडिया का, यहाँ पर हमें ये झूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है, या कल्टीवेटर्स आज भी पाए जाते हैं, राइट। मूव ऑन टू द थर्ड वन, हर्डर ऑफ एनिमल्स। हर्डर मीन्स जो लोग पशुपालन करते हैं, चरवाहे लोग, सो हर्डर्स ऑफ एनिमल्स। अब इस यहाँ पर भी जो है ट्राइबल लोग हैं, पहले हमने देखा कि हंटर्स और गैदर तरीके के, मतलब वो लोग जो सामान को, जानवरों को मारते हैं और फिर उसको इकट्ठा करते हैं, ये तो हो गए उस तरह के ट्राइबल लोग। दूसरे हो गए कौन से वाले, ज़ूम कल्टीवेटर्स ट्राइबल ग्रुप। अब तीसरा जो ट्राइबल ग्रुप है वो कौन सा है, हर्डर्स ऑफ एनिमल। Many tribal groups lived as the herder of animal. Tribals were pastoralites who moved with their herds
सिपाही लोग जो जिन्होंने शिप या दूसरी शिप हो गई या दूसरे तरह के जो एनिमल्स पशुपालन कर रखा है जिसका, उनको चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चारा ढूंढते हुए ये लोग ले जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं हर्डर्स ऑफ एनिमल। अब इस तरह के लोग अगर बोला जाए पंजाब में जो इस तरह के आदिवासी लोग उन्हें क्या बोलते हैं, वन गुज्जर्स। उसी तरह आंध्र प्रदेश वाले जो आदिवासी लोग हैं उसको बोलते हैं लबदिस। उसी तरह अगर बात करें कुल्लू वाले तो गदिस, और जो कश्मीर के लोग जो होते हैं आदिवासी लोग उनको बोलते हैं बकरवाल्स। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैं ये लोग जो आदिवासी लोग जो पशुपालन करते हैं उनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो वन गुज्जर्स हो गए कहाँ के, पंजाब के, है ना, लबादिस हो गए कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, गदिस हो गए कुल्लू के, और फिर बकरवाल्स हो गए कश्मीर के। तो ये हो गए तीसरे तरह के आदिवासी लोग। अब लास्ट फोर्थ आदिवासी ग्रुप कौन सा है, ट्राइबल ग्रुप्स। इनको बोलते हैं सेटल्ड कल्टिवेटर्स। Many tribal groups since the beginning of the 19th century began settling down and cultivating their fields. They started plowing the land which was easier not to use by the tribals. Gradually they got rights over the land or they lived on it. It was a Mundas of Chotanagpur who belongs to this class. Members of this class were considered as the descendants of the original settlers. All of them had equal rights on the land within the same class. Some people were more powerful than others. अब ये जो चौथे तरह के लोग थे, ये किस तरह के लोग थे, सेटल कल्टिवेटर। इनको सेटल कल्टिवेटर क्यों बोला गया, क्योंकि अब इन्होंने जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो चारे की तलाश में हो, चाहे वो खेती की उसमें हो, बदलने की उसमें हो, या हंटर्स गैदर्स करने के लिए हो, तो क्या एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए या दूसरे उससे ये लोग घूमते रहते थे। लेकिन बोला कि 19th सेंचुरी आते आते इन्होंने जो सेटल कल्टिवेशन शुरू कर दिया, तो मतलब अब ये एक जगह पर रहना शुरू कर दिए थे। और अब इन्हें प्लोइंग करना मतलब हल जिसे बोलते हैं, हल जोतना, हल जुताई होता है, इनको ये प्रोसेस समझ में आ गया था। और जो कि इससे पहले जो ट्राइबल लोग थे उनको ये नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में कमिंग टू द 19th सेंचुरी दे स्टार्टेड प्लोइंग द लैंड, उनको आ गया था। और ग्रेजुअली इनको जिस जगह पर ये रहते थे, इनके पूर्वज रहते थे, उन जगहों का अधिकार मिल चुका था। मतलब अब नाउ दे आर द they gradually they got the right over this place or over this land where they lived, right? और अगर बात करें तो ये कौन सी जगह थी जहाँ पर इस तरह के राइट और ये लोग सेटल कल्टिवेशन शुरू कर चुके थे, तो छोटा नागपुर जो जगह है ना, यहाँ पर मुंडा एक ट्राइबल कम्युनिटी है। तो मुंडा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो छोटा नागपुर के, उन्होंने सेटल कल्टिवेशन शुरू कर दिया था। जो कि इस क्लास के लोग थे वो ऐसा मानते थे जो इनके पूर्वज थे उनकी जमीनें हैं ये, जो ये आगे चलकर जिस पे कल्टीवेट कर रहे हैं, डिसेंडर्स ऑफ द ओरिजिन सेटल्ड, मतलब जो आदि मुंडा प्रजाति के जो पहले इनके पापा दादा परदादा ये लोग होते थे, उनकी जमीनें थी ये। इन सभी को इक्वल राइट मिला था इस लैंड पे। ऑल ऑफ देम आर गॉट इक्वल राइट्स ऑन द लैंड एंड विद इन द सेम क्लास, और जो जिस क्लास का था उसको उसी क्लास में मिला था। सम पीपल आर मोर पावरफुल देन अदर्स। अब दोज हु आर द some got the extra land because they are descendants of the some particular tribal group. तो जो जिन ट्राइबल्स ग्रुप के पास जमीन ज्यादा थी उनको जमीनें ज्यादा मिल गई, जिनके पास कम थी उनको कम मिल गई। तो छोटा नागपुर में जो मुंडा प्रजाति के लोग थे, यानी मुंडा कम्युनिटी या मुंडा ट्राइबल ग्रुप के मेंबर्स थे, उनको इस तरह की जमीनें मिली हुई थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, वी हैव लर्न टुडे एज द ट्राइबल कम्युनिटी, वी नो अबाउट द हंटर gatherers ट्राइबल कम्युनिटी, we know those who belongs to the Odissas, right? In Odisha they were lived as a Koons community, Koons tribal community, right? If we move further then we can find the Jhum cultivators, right? Jhum cultivators आदिवासी लोग कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ईस्ट में और सेंट्रल पार्ट में, right? If we move further again then we have herders of animals where different kinds of tribal community lived, right? If you are talking about the one Gujjar, Bakrovals, Rajput, kind of बहुत सारे tribal community we can find. And the last one, the Mundas tribal community, where they belongs to the Chota Naga. Still they are in our India. This community is still in India. So that's all for today. I hope the topic is understood by you all. Please find out 15 hard word of related that chapter.
already and write down that hard one on your textbook, on your notebook, right? And also please read the topics which I taught you today, and if you face any difficulty, any related question which is arising which is comes in your mind, please let me know by texting me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9205531155.